Hello friends. So in today's class what we are going to do is we are going to start question number 10 of your chapter number 5, that is admission of partner, right? So question number 10 सबसे पहले शुरू करते हैं. Vidit and Vishal are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3, यानी कि old ratio दिया हुआ है 2:3. The balance sheet of their firm as on 31st March is given. Fine. Capital दी हुई है, contingency reserve is there, workman compensation reserve is there, investment reserves is there, creditors, bad debt reserve, that is okay. Then building, machinery, stock, debtors, bank, investments, वो सारी चीज़ें दी हुई है assets में, that is also fine. They admitted Bunty as on 1st of April 2016 as a new partner on the following terms. Vidit will sacrifice 1/4 from his share. मतलब क्या, हमें सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है. विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि विदित अपने शेयर में से 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर देगा. करेक्ट. देन विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ बंटी. विदित ने 1/4 सेक्रीफाइस करा, विशाल ने 1/8 सेक्रीफाइस करा. दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही हमें दे दिया है. कैन आई से लाइक दैट? सो कैन आई राइट लाइक दिस? आप समझना अच्छे से. विदित ने 1/4 सेक्रीफाइस करा है, विशाल ने 1/8 सेक्रीफाइस करा है. टू मेक दिस डिनोमिनेटर कॉमन, ये डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए कैन आई से आई शुड डू इट लाइक दिस, इंटू 2 इंटू 2. कैन आई डू इट लाइक दिस? तो मेरा ऐसा हो जाएगा 2/8 इज टू 1/8. डिनोमिनेटर विल बी सेम. सी सिंपल सा एलसीएम निकाल रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, राइट. 1/4 इज टू 1/8 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है. दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए व्हाट एम आई सपोज टू डू, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 मिलेगा. सो ऊपर भी मुझे 1 इंटू 2 करके 2 करना है. करेक्ट. So my sacrificing ratio will be 2:1, right? So I suppose this is clear with you, right? Simple सा मैंने जो 1/4 and 1/8 हमें सीधा दे ही दिया ये क्वेश्चन में से कि भाई विदित 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है एंड विशाल 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है. नो नीड टू थिंक एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट. चलो फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में. Bunty will bring 72,000 as capital and his share of goodwill in cash. That is fine. चलो तो फिर वो कैश में ही पैसे लेके आ रहा है गुडविल के. Goodwill of the firm is valued at 32,000. Fine. Vidit and Vishal withdrew 50% of goodwill received by them in cash. चलो ये पॉइंट हम स्टेप नंबर कौन से में, स्टेप नंबर 3 में करेंगे, राइट. देन provision for depreciation on machinery is to be made at 10%. Write off 3,600 as bad debt from debtors and provision for bad debt is to be maintained at 15%. Correct? Fine. Market value of the investments are given 9,000. Claim of workman compensation is accepted at 30,000. 10% of creditors are now not to be paid. अच्छी बात है ये तो कि 10% of creditors अब हमें पे नहीं करने हैं. Prepare necessary accounts and balance sheet of the new firm. As usual, they will be giving you this thing only. Necessary accounts बनाओ. They'll never tell कि ये accounts बनाओ. They'll tell what? Necessary accounts बनाओ. तो वो हमें पता चल जाना चाहिए कि अब necessary accounts कौन से है. Revaluation, partners capital, cash in bank and then balance sheet, right? So let's begin the question. सबसे पहला पॉइंट क्या करना है हमें. We do have this capital Vishal, Vidit and Vishal का 48,000 and 60,000 and bank is 8,400. तो वो हमें सबसे पहले लिख लेना है in our capital accounts of the partners, right? I have already prepared a format. You are supposed to make a proper format and then only do it, huh? So by balance brought down 48,000, 60,000, correct, and cash ka it was 8,400, right? So to balance brought down it was 8,400, correct. Keep the notes with you so that you can see कि मैं ये कहाँ से लिख रही हूँ सब चीज़ें, right? A minute. Fine. चलो. Now
अब अवर नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो भी रिजर्व्स है वो सारी अब हमें क्या कर लेनी है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेनी है अमॉन्ग्स द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, एंड द ओल्ड रेशियो इज 2:3, राइट। चलो, कंटीजेंसी रिजर्व इज देयर 9000, तो सिंपल सा क्या कर लेंगे हम, 9000 को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो हियर आई विल बी राइटिंग बाय कंटीजेंसी reserves 2:3, यानी नथिंग बट 3600 एंड 5400, 9000 है तो करेक्ट। देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000 दिख रहा है आपको, और हमें क्या बोला गया है, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड टू बी ₹30,000। ना हमारे पास रिजर्व है 24,000 की, और क्लेम एक्सेप्ट हो गया है कितने का, 30,000 का। अब अच्छे से समझना, क्लेम कितने का है, सॉरी रिजर्व कितने की है, 24,000 की, एंड क्लेम हैज़ बिन एक्सेप्टेड बाय ₹30,000। कैन आई से द फर्म इज मेकिंग अ लॉस ऑफ ₹6,000। पार्टनर्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करना छोड़ो, जो रिजर्व थी उससे भी ज़्यादा का क्लेम आ चुका है वर्कमैन से, राइट। सो कैन आई से 6,000 विल बी द लॉस, करेक्ट। सो व्हाट विल बी द एंट्री इन दिस केस, 6,000 का लॉस हुआ उतना समझ में आया, 24,000 की रिजर्व थी, 30,000 का क्लेम आ गया, मीनिंग देयर बाय 6,000 इज अ लॉस। सो आई विल बी राइटिंग द लॉस ओवर वेयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, वो हमें अच्छे से पता है अब, राइट। सो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर वर्कमैन एक्सीडेंट क्लेम, 6,000 रुपीज़ का लॉस है, राइट। एंड द नेक्स्ट एंट्री विल बी workman accident claim, how much it is, definitely 30,000, correct। I hope this is clear, right। चलो फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, राइट, दिस इज अ गुड पॉइंट। इन्वेस्टमेंट रिजर्व में हमें क्या दे के रखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज गिवन एट ₹9,000। नाउ यू लुक एट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इट इज 18,000, राइट। 18,000 की वैल्यू गिर के 9,000 हो चुकी है, कैन से 9,000 का मुझे हो गया लॉस, करेक्ट। 9,000 रुपये का लॉस हो चुका है। नाउ लेट्स सी ओवर हियर, इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितने की है, 7,200 की है। अब अच्छे से समझना ये चीज़ को, 18,000 के इन्वेस्टमेंट्स थे, उसकी वैल्यू गिर के हो गई 9,000, कैन से मुझे लॉस हो गया 9,000 का। पर वो लॉस बेयर करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व ही नहीं है। जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा था, वी डू हैड दैट रिजर्व्स, एक्स्ट्रा रिजर्व्स पड़ी थी जिसमें से हमने लॉस भी बेयर करा, एंड फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बच गया जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। बट इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे 9,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, और वो लॉस को बेयर करने के लिए आई एम ओनली हैविंग 7,200 रुपीज़, राइट। सो कैन आई से मुझे, यानी कि फर्म को 1,800 रुपीज़ का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, करेक्ट। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की यहाँ पे मैं एंट्री कर लूँ सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट रुपीज़, राइट, एंड द लॉस इज देयर, सो आई विल बी राइटिंग लॉस टू इन्वेस्टमेंट्स 1,800, राइट। हाउ कम दिस 1,800, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, राइट। सी आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट्स है, उसकी वैल्यू गिर के हो गई है 9,000, यानी कि 9,000 का हुआ लॉस। वो लॉस बेयर करने के लिए आई शुड हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो मेरे पास इन दिस क्वेश्चन ओनली 7,200 रुपीज़ इज देयर। तो 9,000 का लॉस हुआ, पर बेयर करने के लिए 7,200 है, कैन आई से 1,800 का एक्चुअल लॉस हुआ है, करेक्ट। दैट विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, राइट। चलो फिर फाइन, दैट्स ऑल। और हमारे पास कुछ फिक्टिशियस एसेट है नहीं, तो इट्स फाइन, चलो फाइन। अब द थर्ड स्टेप इज गुडविल। गुडविल में हमें क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 32,000 एंड
बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल एंड हीज शेयर ऑफ गुडविल. अब हीज शेयर ऑफ गुडविल मानी क्या? हीज शेयर ऑफ गुडविल मानी क्या? कैन आई से ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2:1. करेक्ट. द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज व्हाट? 2:1. अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा 2:1 का है, अरे बाप रे, जस्ट अ मिनट. हाउ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा 2:1 का है, मीनिंग देयर बाय कि ये जो 2/8 एंड 1/8 का सेक्रीफाइस करा, बराबर है, विदित और विशाल ने मिलके, वो दोनों का मैं टोटल करूंगी, दैट विल बी 3/8. करेक्ट. वो क्या हो जाएगा? नया पार्टनर कौन है? बंटी. उसका शेयर हो जाएगा बंटीज शेयर. करेक्ट. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे यूज करना है. सी, यू डू नॉट नीड टू थिंक मच कि क्या होगा, ये कैसे करना है. सिंपल समझो. वापस बोल रही हूँ, हमें सबसे पहले तो क्या दिया था कि भाई जो विदित है वो 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, विशाल है वो 1/8 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है. राइट. तो कहना इसे मुझे दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू टू करना पड़ा. So can I say Vidit is sacrificing 2/8 share and Vishal is sacrificing 1/8 share. The total sacrifice will become the new share of the new partner. सीधी बात है ना, दोनों का सेक्रीफाइस ही मिला के नए पार्टनर का शेयर होगा ना. बहुत लॉजिकल बात है कि दो पार्टनर्स है, 50-50 कर रहे थे, नया पार्टनर एंटर हुआ. अब नए पार्टनर को 20 रुपये देने हैं फॉर एग्जाम्पल, और दोनों 10 और 10 निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? 10 + 10 = 20. तो 20 विल बी द नया पार्टनर का शेयर. करेक्ट. सो इन दिस केस ऑल्सो दोनों पार्टनर यानी कि विदित एंड विशाल 2/8 एंड 1/8 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो नए पार्टनर का शेयर क्या होगा? 3/8. Correct. I hope this is clear now, right? So what we are supposed to do is, अब हमारे पास क्या बोला गया है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 32,000. 72,000 वो लेके आया और उसका शेयर ही विल बी ब्रिंगिंग इन कैश. राइट. चलो फाइन. सबसे पहले तो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर टू बंटीज कैपिटल अकाउंट 72,000. जो उसका कैपिटल का शेयर लेके आया वो तो लिख लेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट 72,000. करेक्ट. अब गुडविल की बात करें, द फर्म्स गुडविल इज व्हाट? 32,000. करेक्ट. बंटीज शेयर इज इक्वल्स टू 2/8 + 1/8 करके मैं यहाँ पे लिख ही रही हूँ ताकि आपको पता चले. तो बंटीज गुडविल का शेयर विल बी, गुडविल का शेयर विल बी 32,000 × 3 / 8 कम्स टू 12,000. करेक्ट. ये मुझे बंटी का गुडविल का शेयर मिला जो वो कैश में लेके आने वाला है. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था, वापस बोल रही हूँ, व्हेनेवर यू आर डूइंग गुडविल का पॉइंट, यू आर सपोज टू राइट द जर्नल एंट्रीज एंड देन ओनली डू द सिंपल लेजर posting. Right. So let's pass the journal entries. First journal entry will be cash account debit to premium for goodwill account. It is 12,000 and 12,000. Second entry will be premium for goodwill account debit 12,000 to Vidit's capital account to Vishal's capital account. In which ratio? As I have already discussed, it will be in the sacrificing ratio, that is what? 2:1. So it will be 12,000 का 2:1 करो, so it will be 8,000 and 4,000. राइट. अब हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो बोला है 50% इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन
कैश, ऐसा बोला है 50% पार्टनर ने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको गुडविल का जो चार्ट बताया था, ऐसा हो तो यू कीप दैट चार्ट विथ यू, और आप चार्ट में से देख सकते हो कि अगर पार्टनर विड्रॉ करे तो क्या एंट्री पास करनी है। सो हियर द एंट्री विल बी थर्ड एंट्री with its capital account debit 8,000 का 50%, that is 4,000. Let me write it with a different color pen so that आपको कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी करते टाइम कि ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपको, राइट। चलो थर्ड एंट्री मैं डिफरेंट कलर पेन से ओवर हियर आई एम पासिंग with its capital account debit how much, 4,000. Vishal's capital account debit how much, 50% of this amounts, right? अब पता चल जाना चाहिए if you have studied that goodwill वाला chart properly, right? 2,000 to bank account 6,000, correct? Here it is only bank, right? I suppose so. बैंक में से ही एंट्री करेंगे, फाइन। चलो अब ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई उसका क्या करेंगे, फटाफट से लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। चलो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आई बी राइटिंग 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इट इज़ 12,000। देन विद इट और विशाल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आई बी राइटिंग बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 एंड 4,000, करेक्ट। मैं सिंपल और एकदम सिंपल सभी का सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्ट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, राइट। एंड द थर्ड एंट्री विद इट्स कैपिटल विशाल्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट, सो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आई बी राइटिंग बाय विद इट्स कैपिटल अकाउंट 4,000 by Vishal's capital account 2,000, and here on their capital account debit side I'll be writing to cash account 4,000 and 2,000, that's all. सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट लगे अगर आपने चार्ट अच्छे से पढ़ा है गुडविल का तो, राइट। अदरवाइज इफ़ यू आर टेकिंग दिस चैप्टर वेरी लाइटली देन जस्ट फॉरगेट दैट 8 मार्क्स, राइट। चलो फिर आगे बढ़े, गुडविल का पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑल दोज एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटीज़। चलो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी इज़ टू बी मेड एट 10%। मशीनरी है कितने का, 30,000 का है। सो लेट्स मेक अ प्रोविजन। मशीनरी 27,000 हो जाएगा, 3,000 का प्रोविज़न जाएगा तो, एंड 3,000 मैं कहाँ पे लिखूँगी, डेफिनेटली इन माय रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आई बी रिकॉर्डिंग, राइट, टू प्रोविज़न फॉर डेप्री ऑन मशीनरी, राइट, 3,000। चलो फाइन। देन व्हाट दे हैव आस्क्ड, सॉरी, yes, what they have asked, write off 3,600 as bad debt from the debtors and provision for bad debt is to be maintained at 15%। ऐसा बोला गया है हमें कि 3,600 हमें क्या करने हैं, एज अ बैड डेट राइट ऑफ ऑलरेडी कर देने हैं, और उसके बाद जो रहे उसका कितने परसेंट बोला है, 15% मुझे क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है, राइट। सो द डेटर्स आर 39,600, राइट, जिसमें से मुझे क्या करना है, 3,600 एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर देने हैं। चलो लेट्स डू इट। आई एम राइटिंग डेटर्स 39,600 minus bad debt, it is 3,600, so it will be 36,000, correct, माइनस बैड डेट रिजर्व हमें कितना परसेंट बोला गया है, 15% दे हैव आस्क्ड फॉर, राइट। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज 36,000 का
15%, इट इज़ 5400, राइट। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सा 5400 माइनस कर देंगे, इट विल बी 30,600। अब मुझे करना क्या है फ्रेंड्स, मुझे जो भी प्लस माइनस हुआ है, ये जो बैड डेट का क्लेम आया, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग इट ओवर हियर टू बैड डेट, मेरे लिए तो लॉस ही हो गया। सो टू बैड डेट इट विल बी 3600। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बैड डेट रिजर्व भी दिखाई देगा। बैड डेट रिजर्व इज 1800, राइट। 5400 का बैड डेट रिजर्व मुझे क्रिएट करना था, करेक्ट। उसमें से अब अच्छे से समझना, हाँ एकदम प्रॉपरली समझना ध्यान से। 1800 तो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड, 1800 तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी है। 5400 के रिजर्व्स क्रिएट करने थे, उसमें से 1800 तो ऑलरेडी मेरे बैलेंस शीट में थे ही, तो है ही, करेक्ट। तो अब मुझे कितने के, 5400 में से 1800 इज ऑलरेडी देयर। सो व्हाट एम आई सपोज टू डू इज, आई एम सपोज टू क्रिएट द बैड डेट रिजर्व एक्स्ट्रा ऑफ ₹3600 only, correct. So I'll be recording over here in my revaluation account to bad debt reserves 3600, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, 5400 मैंने माइनस कर दिए, करेक्ट, क्योंकि मैंने लायबिलिटी साइड पे 1800 नहीं लिखे, मैंने डायरेक्टली डेटर्स में से टोटल बैड डेट रिजर्व माइनस कर दी, दैट इज ओके। अब 1800 मेरे पास ऑलरेडी थी, तो बाकी की जितनी रही उतना मुझे लॉस यहाँ पे दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट। चलो फिर what is left now, 10% of creditors are not now to be paid, 10% creditors अब हमें पे नहीं करने हैं, अच्छी बात है। creditors are 30,000, जिसमें से 10% I am not supposed to pay, very good, so I'll be writing it over here by creditors, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ ना, 3000, and here in the balance sheet I'll be recording creditors 27,000, करेक्ट। 30,000 के थे, ऐसे थे, उसमें से 3,000 के आप पे नहीं करने, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग इट एज 27,000 डन। तो चलो ये एडजस्टमेंट्स तो हो गए अपने। अब क्या करना है, मैंने क्या सिखाया है, वट एवर अनटच्ड आइटम्स आर देयर जस्ट यू आर सपोज टू राइट इट डाउन। चलो यहाँ पे देखिए, कंटीजेंसी रिजर्व्स डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। चलो लायबिलिटी साइड पे सब हो चुका है, ये तो उसका बैलेंस तो हमने लिख ही लिया है। Building 66,000 is left, machinery is done, stock is left, debtors done, bank done, investments done. So building and stock 66 and 18,000. Let's record it first. Building account, I mean building 66,000 and stock, recording it, stock 18,000। अगर आपने 11th में अच्छे से एक पैटर्न ऑब्जर्व करी होगी तो यू विल बी एबल टू राइट द सेम पैटर्न इन विच आई एम रिकॉर्डिंग, कि पहले मैं फिक्स्ड असेट्स जनरली लिखती हूँ एंड देन ऑल अदर असेट्स। so if you have observed that pattern of writing the same, then you can record it accordingly। चलो डन, सब कुछ हो गया, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सब अकाउंट्स क्लोज करना है। सो फर्स्ट लेट्स क्लोज दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, Vidit and Vishal, here it will be 7,800, 10,800, it will be 18,000, 18,000, here it will be 18 minus 3, 15,000, 6,000 and 9,000, old partners old ratio, correct. So then to revaluation loss 6,000 and 9,000, correct. then कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करेंगे।
चलो फटाफट से 48,000 प्लस 8,000 प्लस 3600 comes to 9,600. Here it is 65,400, 64, so 69,400, and here it is 72,000. उसमें से जो चीज़ें डेबिट साइड पे है वो फटाफट से माइनस कर दे. 72,000 correct. So here it will be 2. Here let me again use a different colored pen to balance, carry it down. It will be 59,600, 49,600. Here it will be 58,400, and here it will be 72,000 correct. So let me first record it over here. Capital account, Vidit, Vishal and Bunty. It is 72,000 correct. 49,600, 58,400, so total comes to 1,80,000 करेक्ट. ये हो गया. चलो अब फटाफट से क्या करेंगे, कैश इन बैंक अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे जल्दी से. it is 12 plus 72 plus 8,400 comes to 92,400. उसमें से फटाफट से माइनस करेंगे. 6,000 comes to by balance carried down. It has to be 86,400. It will go to balance sheet cash or bank. 86,400 correct. Now just do the quick total of the same. 180 plus 30 it is 2,37,000. 2,37,000. both the side just make sure कि tally हो जाए आपका. So this is how you are supposed to do the sum revaluation account, partners capital account, cash in bank account, and I have made the working notes very clear, and then balance sheet after admission, right? I hope you are clear with the same. For any doubts or anything, any reviews, you can definitely comment on the video. Thank you.